USCMA, so many questions coming in there. We did some boot camps and there were so many curious questions that students had. और बहुत सारे social media platforms, YouTube हो गया या Instagram हो गया, बहुत स्टूडेंट्स डीएम करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड इट इज वंडरफुल टू सी कि कितना क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा है ये क्वालिफिकेशन के बारे में. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर द एयर, आई एम गोइंग टू क्लियर एंड गिव यू आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड. सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड. बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप बहुत क्लियर हो जाओगे कि आपका यूएससीएमए का जर्नी कैसा होना चाहिए. USCMA should be done after graduation. नहीं, this is wrong information. देखिए USCMA करने के लिए यू कैन फर्स्टली स्टार्ट टू डू एग्जाम्स आफ्टर ग्रेड 12. ठीक है, तो 12th आपका जैसे ही खत्म हो जाए, आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर USCMA जर्नी. ओके, तो आफ्टर you have to basically complete 2 parts and both parts typically take 12 to 14 months. Now once you've written both your parts, which is 2 exams, you need 2 continuous years of work experience. So you should start working and you imagine parallelly आपका graduation let's say चल रहा है. Okay, now आपका जब दोनों पार्ट्स हो जाएगा, आपके 2 कंटिन्यूस इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो जाएंगे और आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, ऑल 3 कंडीशंस आर मेट, तब आपके पास USCMA का डेजिग्नेशन आ जाएगा. ठीक है, सो डेजिग्नेशन के लिए यस यू नीड टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड यू नीड टू फिनिश बोथ द पार्ट्स एंड यू नीड 2 years of experience, but you can start preparing and writing your papers immediately after your class 12. USCMA is not valid in India. No, again, not true. See, please understand that there is an Indian CMA which has been around for a long time and very good degree to do, and then there is a USCMA which from a global perspective. USCMA is accepted by or is rather recognized by employers across the world, right? So it's got global mobility. And naturally, when you have so many multinational companies in India, they also absorb USCMA candidates for various roles. So आप देखेंगे अगर financial planning and analysis हो गया, internal audits हो गया, corporate finance हो गया, management accounting हो गया, and a lot of decision making roles आपको USCMA candidates मिलेंगे. तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप USCMA करोगे तो आपको इंडिया में जॉब नहीं मिलेगा. Not true. Yes, lot of jobs. मैंने अभी बताया आपको what kind of jobs you can get. So you can work across sectors, okay, in the industry. You can even work in consulting, and you can work on a host of roles. Procurement team हो गया, supply chain हो गया, selling function में हो गया. So you can work in host of these roles. Finance teams हो गया. So corporate finance, planning and analysis, budgeting, decision making, इस तरह के roles आपको बहुत creative roles मिल सकते हैं. By the way, अगर आप एक खुद का business शुरू करना चाहते हैं, you want an entrepreneurial journey, or you have a family managed business, then also this qualification can be very useful because ये qualification से आप basically decision making सीखते हैं. You learn to look at a business, you learn to look at the how and the why behind the numbers and not just the what, and that you can go back and apply even in your own business. Okay. पता है मैं अगर एक लाइन में इसका जवाब दूं ना तो यू स्टडी बेसिकली द वाई बिहाइंड द नंबर्स एंड नॉट जस्ट द व्हाट. आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नंबर्स को बैलेंस शीट P&L बनाना सीखते हो, उसके कंप्लायंसेस सीखते हो. Management accounting में you start thereafter. You start with analysis. You start to look at the story behind the numbers. You start to look at, you start to read between the numbers and start forecasting for the future. You start budgeting for the future. You see trends and you know how businesses are going to perform. So basically management accounting बहुत proactive होता है. आप इतना सारा डेटा के साथ decision making सीखते हो. Okay? और अगर आपको specific समझना है क्या सीखते हो तो अपनी स्क्रीन पे ना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ. Have a look. ये बेसिकली 2 पार्ट्स है CMA US के. पार्ट 1 जो है विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स जिसको बोला जाता है. तो आप देखोगे तो इसमें आप यू लर्न ऑफ कोर्स अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक बैलेंस शीट, एक P&L, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो कैसे बनता है. यू लर्न प्लानिंग एंड बजटिंग, यू लर्न अबाउट हाउ परफॉर्मेंसेज आर मैनेज, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट्स यूज्ड इन दीज मॉडर्न डे बिजनेसेस. एंड पार्ट 2 जो है वो पूरा फोकस है ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो हाउ डू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट, आपके पास फंड्स होते हैं, बैलेंस शीट को उसको कैसे मैनेज किया जाता है, हाउ डू टेक बिजनेस डिसीजंस, हाउ डू मैनेज रिस्क्स इन एन एंटरप्राइज, हाउ डू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं, एंड फाइनली व्हाट काइंड ऑफ एथिक्स यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस. सो दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द क्वालिफिकेशन. लास्ट इज व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ डूइंग USCMA. गुड क्वेश्चन. देखो पूरा आपको ना क्वालिफिकेशन करने में अगर आप एक स्टूडेंट हो तो टिपिकली आपको
You can say about 1,40,000 to 1,50,000 Indian rupees का आपको इन्वेस्टमेंट लगता है. अब आप पूछोगे कैसे, तो अपने स्क्रीन पे देखो दो चीज़ है, एक है व्हाट यू पे द USCMA एंड एक है व्हाट यू पे अ कोच लाइक लेट्स से सिंथेसिस लर्निंग. सो इफ यू आर लुकिंग एट व्हाट यू आर पेइंग CMA, तो आप बेसिकली दो जर्नीज है इसमें. अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका एक कॉस्ट है, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके कॉस्ट अलग है. लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक एंट्रेंस फी भरना है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स, और आपको थर्ड कंपोनेंट देखिए एक मेंबरशिप फी भरना है, ठीक है, विच इज in US dollars of course, and then you have to pay your exam fee, which is again per part. Now all the fees that you see on the screen is obviously the rack rate quoted by IMA, but ये तीनों में डिस्काउंट्स मिलता है, बहुत सारे डिस्काउंट्स IMA देता है, which we are very happy to pass on to students. तो ये कैसे मिलता है उसके लिए आपको you'll have to get in touch with us, but ये फीस काफ़ी कम हो जाती है, मतलब तो the extent के 1/3 डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट मिल जाता है ये फीस पे कभी-कभी. So again get in touch with us on how to do it. And same component है प्रोफेशनल के लिए, but obviously the figures are different. तो ये हो गया आपका what you pay the IMA. इसके अलावा you'll pay coaching fees for part 1 and part 2, okay? एंड लाइक आई सेड सब कुछ मिला मिलू के रफली आपका एज अ स्टूडेंट 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है. वर्किंग प्रोफेशनल हो तो थोड़ा ज़्यादा होता है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. बट अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि USCMA के क्या कॉस्ट और फीस कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा. एंड आई होप दैट वीव आंसर्ड मोस्ट क्वेश्चंस. लेकिन अगर और भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट्स एंड विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. Also, you can book a one-on-one counseling session for yourself. Be very clear of your journey and then start your journey with us. Good luck to you.